देखो ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। आज लगा गुरु के बच्चे आ गए। ਬੋਲੇ ਹੀ ਸੋਨੇ ਹਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। जब पूछा गया कि इस आंदोलन में मीठे भी आ गए हैं तो क्या आपका जवाब था? नहीं, इस आंदोलन में मीठे भी आएंगे, इस आंदोलन में किसान भी आएंगे, मजदूर भी आएंगे, इस आंदोलन में भारत का हर एक इंसान आएगा। आपके हिसाब से वो मीठे हैं तो मीठे ही सही। अभी हरियाणा से हम वापिस आए हैं सभी लोग। हरियाणा से आए? हाँ, सभी हमारे 13-14 गाड़ी आए हैं, सभी साथी हरियाणा से हैं जो मेरे साथ अभी खड़े हैं। यहाँ आज पता लगता है जैन जी की पावर का। जिन्होंने कॉकरोच बोला, जिन्होंने इनको जैन जी को इनकी पावर को मतलब अनदेखा करने की कोशिश करी, आज उन्होंने केंद्र की सरकार को हिला के रख दिया। जो भी उनका टीयर गैस वाला कुछ भी था, उनको लगा कि हम लोग डर जाएंगे, लेकिन डरने वालों में से नहीं है। इतनी जनसंख्या के जेंजी बिल्कुल नहीं डरते, किसी से नहीं डरते। प्रोटेस्ट विड्रॉ कर दिया है, घर जाना कि नहीं जाना? अभी नहीं जाना है। इतनी खुशी हुई है कि मेरी शादी पे भी इतनी खुशी नहीं हुई। और एक और तस्वीर जड़ी है वो आई है सचिन कुमार। क्या क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली पुलिस आ गई है, जीत गए। क्या क्या कहना चाहेंगे? आप सीधा जेल से आ रहे हो? It's done, bro. Finally, it's done, bro. It's done. It's actually done. ਦਿੱਲੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਾਸ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਹਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ तमाम ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਜੈਨਜ਼ੀਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ तमाम ਲੋਕ ਜੋ ਨੇ ਇੱਥੇ मौजूद ने, निहंग जथेबंदियां इत्थे मौजूद ने, इन्हां नाल भी गलबात करना चाहांगे। क्या कहना है निहंग जथेबंदियों के बारे में, आपका क्या कहना है? हाँ, की कहना चाहोगे इन्हां बारे? क्या सर कुछ नहीं, जीत गए यही बहुत हमारे लिए है। एंड बहुत ही बढ़िया जो लोग सहयोग दे रहे हैं यहाँ पे आके। एंड जिसको भी दवाई की जरूरत हो यहाँ पे आ सकता है। ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये हुड़दंग मचाते हैं, बट कईयों ने ये भी कहा कि अगर ये ना आते तो शायद पुलिस आगे आ जाती और बच्चों के साथ और मारपीट करती। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पिछले लंबे टाइम से जो आंदोलन हो रहा है उसमें आपने देखा होगा कि 20 तारीख को क्या बर्बरता हुई है बच्चों के साथ में। पुलिस ने बिल्कुल निहत्थे बच्चों पर है ना, जो लोग यहाँ आंदोलन अपनी मांग रख रहे थे उनके सामने है उन बच्चों के ऊपर लाठी डंडे और कील से लगी हुई डंडियां उनके साथ में मारपीट करी। तो अगर ये सब चीज होगा, संख्या बल होगी तो ये बोले ही सोने हाल दे जकारे लग रहे ने। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ तमाम ਲੋਕ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਹੰਗਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਖੜ ਕੇ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜ਼ੋਹਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਜੋ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਫਲੱਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅੰਦੋਲਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਪੁਕਾਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। 90% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਲਾ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰਿਆ।
ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਤਾਂ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਬੁਲਾਇਓ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਚਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਿਚਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸਵੀਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ तमाम ਇੱਥੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਅੱਜ ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ आए, क्या बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है जी, बड़ी खुशी हो रही है। वाहिगुरु जी का नाम लेके जो इनकी प्रशंसा है वो जितनी करी जाए वो कम है। अब आगे से क्या मैसेज आएगा? क्योंकि जब किसान निहंग जथेबंदी जब दिल्ली आते थे तो कहते थे खालिस्तानी आ गए, ये उग्रवादी। आज क्या लगा आपको जब ये आए? आप आज लगा गुरु के बच्चे आ गए। जो अलग अलग टैग दे देते हैं उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? देखो जी सबकी अपनी सोच है, अपनी बुद्धि है, अपनी समझ है। जिसको जो चीज दिखाई देगी वो वही बोलता है। तो हमें गुरु नानक देव जी ने सिखाया किससे बुरा नहीं बोलना, जो जो बोल रहे हैं उसे बोलने दो, जो हमारा कार्य है वो हमें करना है। क्या बोलना, आप क्या बोलना चाहेंगे इनके बारे में? दो लोग अगर बोलने हो, दो शब्द बोलने हो, क्या बोलेंगे आप? देखिए बच्चों की मेहनत की लड़ाई है। बच्चे इतनी लाखों रुपए खर्च करके इतने नीट की परीक्षा की तैयारी करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो बच्चों का देखिए इतने दिनों से इतनी भीड़ हो रही थी तो प्रधान जी ने पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था, है ना। ਇਹ ਜੈਨਜੀਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ तमाम ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਗ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ यहाँ पर मीठे भी बहुत आ गए, तो बहुत सोहना जवाब इन्होंने दिता सीगा। आप काफ़ी चर्चा का विषय बने जब आपको सवाल पूछा गया कि इस प्रोटेस्ट में तो मीठे भी आ गए हैं और आपने बहुत बेहतरीन तरीके से उसका जवाब दिया था। हम पंजाब से हैं और पंजाब में भी आपकी वो रील काफ़ी वायरल हुई। क्या कहना चाहेंगे? आज जीत हुई है, लोग आपको थैंक यू बोल रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं। इस प्रोटेस्ट से क्या सीखा, क्या देखा? इन 7-8 दिनों में आपने क्या क्या महसूस किया? बिल्कुल, ये जीत हमारी नहीं है, जीत भारत माता की है। हर एक भारतीय की जीत है ये और बहुत खुशी है, बहुत प्राउड फील होता है हमें कि जिस जेनजी को इतना हमेशा से मॉक करा गया, ट्रोल करा गया, क्या कुछ नहीं बोला गया, यही लोग जो सत्ताओं पर बैठे हुए हैं, यही लोगों ने हमारी फ़ोटोज़ को शेयर करा और कैसे मजाक उड़ाया था और आज वही लोग नतमस्तक हो रहे हैं जेनजीज़ के आगे और इट्स अ कलेक्टिव विन और बहुत खुशी है, बहुत प्राउड फील हो रहा है मुझे। मैं वो बात और वही क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछना चाहूँगा जो वायरल हुआ जब पूछा गया कि इस आंदोलन में मीठे भी आ गए, तो क्या आपका जवाब था? नहीं, इस आंदोलन में मीठे भी आएंगे, इस आंदोलन में किसान भी आएंगे, मजदूर भी आएंगे, इस आंदोलन में भारत का हर एक इंसान आएगा। आपके हिसाब से वो मीठे हैं तो मीठे ही सही, लेकिन वो आएंगे क्योंकि वो भी हिंदुस्तान का हिस्सा है। राइट टू प्रोटेस्ट का अधिकार है, जितने अधिकार आपके पास है उतने ही उनके पास हैं और शिक्षा उनका भी अधिकार है और वो आएंगे, बोलेंगे। आपको खलता है तो खलता रहे। मैसेज क्या सीखना चाहिए इस प्रोटेस्ट से? क्या लगता है कि अंडर एस्टिमेट कर लिया था बीजेपी गवर्नमेंट ने कि ये जेंजीज हैं, मोबाइल पे लगे रहते हैं, जैसे कॉकरोच की स्टेटमेंट दी तो मोबाइल पे रील्स बना के वीडियो डालकर चले जाएंगे? मैसेज सबसे बड़ा यही है कि बदलाव संभव है अगर सब लोग एक साथ आते हैं। हम भूल गए थे सवाल करना, हम भूल गए थे, हम सब में कहीं ना कहीं ये फीड कर दिया गया था, अरे प्रोटेस्ट से क्या होता है, प्रोटेस्ट में परमिशन होती है, प्रोटेस्ट में ये होता है, वो होता है, यही फीड कराया गया था हमें। लेकिन नहीं, प्रोटेस्ट हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है और प्रोटेस्ट बदलाव की एक पहली सीढ़ी है। जब कभी भी आपको लगे आप प्रोटेस्ट कीजिए, अपनी आवाज़ को उठाइए, क्योंकि आवाज़ उठाना, बोलना बहुत ज़रूरी है और हम वो भूल चुके थे। तो ये प्रोटेस्ट सबको झकझोरा है, सबको याद दिलाया है कि दीवारें दरकती हैं और दरारों के अंदर रोशनी जाती है। आप स्टडी कर रहे हैं खुद? जी, मैं कलाकार हूँ। अब मेरा पैशन और प्रोफेशन कलाकारी ही है, तो मैं स्पोकन वर्ड आर्टिस्ट हूँ, मैं कविताएँ लिखता हूँ और कहानियाँ लिखता हूँ। इस प्रोटेस्ट पर क्या जहन में आया और क्या कविता आपने लिखी? अरे मैंने एक कविता सबको ही बहुत अच्छे से सुनाई थी पहले भी, तो शायद मैं वही रिपीट करूँगा, शायद आज के टाइम पे भी हो जाएगी। अंधेरे में उम्मीद की रोशनी फैलाते चलो, तुम नदी हो अपना रास्ता खुद बनाते चलो,
कहीं दूर हो रहा सूर्यास्त भी, कहीं पास हो रहे सूर्योदय का आगाज होता है। देखो ज़रा चांद को, चांद भी तो पूरा धीरे धीरे होता है। अपनी जड़ों को मजबूत बनाते चलो, अपने पंख को और फैलाते चलो, धीमी रफ्तार में ही सही, छोटी छोटी खुशियाँ साथ मिल के मनाते चलो। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤਾਂ ਇਹ तमाम ਲੋਕ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਸ ਮੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਉਹੀ ਤਸਵੀਰ ਲਿਆ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜੈਨਜ਼ੀਜ਼ पोस्टर ला रहे हैं। प्रधान इट्स डन ब्रो, फाइनली इट्स डन ब्रो, इट्स डन, इट्स एक्चुअली डन। जो इतने दिनों से हम वेट कर रहे थे, फाइनली जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे इतने दिनों से, एंड जिसके लिए मैंने डंडे भी खाए, आप देख सकते हैं। आपको भी चोट लगी? जब मेरे को भी लगी, आप ज़्यादा नहीं लगी, मेरे को उतनी नहीं लगी, बट जितनी लगी आप देख सकते हैं। पीएम ने बोला मित्रों की जगह फ्रेंड्स बोला उन्होंने, तो फ्रेंड्स बनोगे? अब ब्रो तो बोल दिया है यार। फ्रेंड्स बोल देने से अगर मैं फ्रेंड्स बन जाऊँ तो फिर तो पूरी दुनिया मेरे को बोल देगी, बट हम उस जनरेशन के नहीं है ना कि कोई भी मेरे को फ्रेंड्स बोल दे बन जाऊँ। आपको वो एक्शन भी तो करके दिखाना पड़ेगा। आप बोल रहे हो अच्छी बात है, बट आप एक्शन ही नहीं करोगे, हम कैसे मान ले कि आप हमारे दोस्त हो। हमें हमारे बड़ों ने ये सिखाया है कि कोई भी ऐसे रैंडम टॉफी दे रहा है आपको तो उसको नहीं लेना है, तो आप बस ऐसे बोल दोगे कि फ्रेंड्स और हम फ्रेंड्स बन जाएंगे। पीएम ने बड़ा गिफ्ट दे दिया, इस्तीफा ही दे दिया, बड़ा हाथ बढ़ा दिया। आज बढ़ाया है, लेकिन उसके बाद हमारी और भी मांगे हैं, एंड सबसे मेन जो है वो आगे के जो पेपर है उस पर भी डिपेंड करता है सब कुछ। एंड आपको पता है ये सिर्फ एक चीज़ नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं अभी जो उनको ठीक करनी है। लेट्स सी, अगर वो करते अच्छी बात है, नहीं तो देखते हैं आगे। ठीक है, थैंक यू। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। मैं कह रही हूँ बहुत अच्छा लग रहा है, फाइनली धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। बच्चों को अभी तक न्याय तो नहीं मिला है। मैं ये कहूँगी कि उनके इस्तीफा देने के बाद एक अच्छा एजुकेशन मिनिस्टर आना चाहिए, जिसके वजह से कौन आगे। होना चाहिए? आपको लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो एजुकेशन मिनिस्टर होना चाहिए? अभी तक तो मुझे नहीं लगता, सारे पॉलिटिशियंस ही एक जैसे हैं। हो सकता है कॉकरोच जनता पार्टी के कोई हो जो बन सके इस पोजीशन के लिए, ठीक हो, क्योंकि अभी तक तो कांग्रेस भी वैसी है मुझे लगती है, बीजेपी भी आप सेम खुद है। स्टडी करते हो? आप लोग स्टडी करते हो? हाँ जी, हम बुक स्टडीज क्या कर रहे हैं आप? मैं अभी कॉर्पोरेट में जॉब करती हूँ। एक्चुअली ये मेरा दूसरा दिन है यहाँ पे। मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही थी तो मैं आ नहीं पा रही थी। मेरा बहुत मन था कि मैं पूरे यहाँ पे आने का कारण क्या रहा? स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना। मेरा भाई भी नेक्स्ट ईयर नीट एग्जाम्स देगा। मैं नहीं चाहती कि ऐसा फिर से पेपर लीक हो जिसकी वजह से वो सुसाइड करे या उसके साथ के कोई भी बच्चे सुसाइड करे। ये बहुत ही गलत है। एजुकेशन सिस्टम बहुत खराब हो चुका है, तो चेंज करना चाहिए इसको। आप भी मांगते हैं चेंज होना चाहिए? होना चाहिए चेंज। आप स्टडी कर रहे हैं? नहीं, मैं HR हूँ, कॉर्पोरेट सेक्टर में हूँ। कॉर्पोरेट सेक्टर में है। जिस तरीके का सिस्टम बन चुका है, पॉलिटिक्स जो हो रही है इस वक्त देश में, जेनजीज क्या सोचते हैं? नौजवान पीढ़ी आप जैसी क्या सोचती है, क्या महसूस करती है? ये जो आर्थिक व्यवस्था जो है वो बिल्कुल चेंज होनी चाहिए, क्योंकि इससे मेरे भाई जो तैयारी कर रहे हैं उन सब के साथ भी यही सेम कंडीशन हो रहा है कि पेपर लीक हो जा रहे हैं, तो उनसे काफ़ी सारी फैमिलियों के सुसाइड किया है। बस मैं ये बोलना चाहूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जेनजीज दी ये ਉਹ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਚ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਪਾਵਰ ਸੀ जेनजीज ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਤੱਕ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ कि रेजिग्नेशन होने तो बाद भी यही कह रहे हैं कि असी घर नहीं जाना, असी इत्थे रहना चाहना है। की कहना चाहोगे? ये वही मंच है जिसने एक मंत्री का इस्तीफा ले लिया। अभी हम कल यहाँ से वापस चले गए थे। आज मांग बनने के बाद हरियाणा से वापस दोबारा फिर हमारी 15 गाड़ियाँ आज फिर यहाँ खुशी मनाने के लिए आई है। अभी हरियाणा से हम वापस आए हैं सभी लोग। हरियाणा से आए? हाँ, सभी हमारे 13-14 गाड़ियाँ हैं, सभी साथी हरियाणा से हैं जो मेरे साथ अभी खड़े हैं। इन जेनजीज के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि जिस सरकार ने कभी इस्तीफा नहीं दिया था उनको भी इस्तीफा देना पड़ गया? या आज पता लगता है जेनजी की पावर का। जिन्होंने कॉकरोच बोला, जिन्होंने इनको जेनजी को इनकी पावर को मतलब अनदेखा करने की कोशिश करी, आज उन्होंने केंद्र की सरकार को हिला के रख दिया। पता है फर्स्ट टाइम होया है कि पीएम मोदी की गवर्नमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ बीजेपी सरकार ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਉਹ जेनजीज ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ जो है वो अस्तीफा देना पै गया। एजुकेशन मिनिस्टर जो धर्मेंद्र प्रधान है उन्होंने रेजिग्नेशन देना पै गया। हाथ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬ ਲੈ ਕੇ
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਰਿਫॉर्म्स ਦੀ, एजुकेशन रिफॉर्म जो है वो लेके आना जरूरी है। गुलाब लेके आए हैं, किसके लिए लेके आए आप? सौरभ जी के लिए। सौरभ जी के लिए। क्या महसूस किया आपने इन जेंजीज की आवाज़ को, इन लोगों की, इन बच्चों के प्रोटेस्ट को आपने देखा जब, तो क्या फील क्या किया आपने? बस यही फील किया कि जो अब ये हो रहा था, ये रिजाइनेशन से यही हुआ कि इनको थोड़ी कामयाबी मिल गई है। जी, मैं उनके लिए गुलाब लाई हूँ, लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहे हैं कि मैं उनको दे सकूँ। क्या इमोशंस, क्या आपके इमोशंस क्या कह रहे हैं? आई एम वेरी हैप्पी और अच्छा हुआ जो भी हुआ। ये प्रोटेस्ट होना था, आज नहीं तो कल होता ही, कोई ना कोई तो आवाज़ उठाता ही। जेंजीज को इन्होंने क्या अंडर एस्टिमेट कर लिया था? क्या इनको लगा कि जेंजीज कुछ कर नहीं पाएंगे, ये तो स्क्रोलिंग वाले बच्चे हैं? नहीं नहीं, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगा। बीजेपी गवर्नमेंट को क्या लगा ऐसा उन्होंने कि इतना टाइम ले लिया उन्होंने, उनको लगा था कि चले जाएंगे? जिस तरह से उन्होंने लाठी चार्ज कराया और जो भी उनका टीयर गैस वाला कुछ भी था, उनको लगा कि हम लोग डर जाएंगे, लेकिन डरने वालों में से नहीं है। इतनी जनसंख्या के जेंजी बिल्कुल नहीं डरते, किसी से नहीं डरते। आपका क्या कहना है? आज तक इतना अच्छा सरप्राइज मुझे नहीं मिला। खुलने के बाद जैसे मैंने खबर सुनी, बस दिल झूम उठा, वाकई में दिल झूम उठा कि ये बहुत अच्छा हुआ। क्या कहेंगे कि जब पता चला कि रिजाइन दे दिया, और क्या पहले भी आए आप कभी यहाँ पे? हाँ जी, मैं पहले भी आई हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी, रिजाइन दे दिया, अभी उन्होंने 1 महीने का टाइम दिया है। ये हमारे देश में कितना बदलाव आ चुका है। इसका झंडा जरा है वो लहराया जा रहा है और इत्थों दी धरना चुकन दी कॉल दे दी है। इत्थों दी हुण धरना चक लिया जाऊगा और इत्थों ही ये बच्चे जो ने वापस अपने अपने घरां लई रवाना होणगे। सो ये वो मंच है जित्थों दी ये तमाम आपस दे विच तकरीरां भी हुईयां, आपस दे विच ये गल्लां करदे हुए नजर आए, स्नेहा दिंदे हुए नजर आए। सोनम वांगचुक जदों इत्थे प्रोटेस्ट करते हैं तो उस तो बाद माहौल किस तरीके नाल बदल जाता है, तो मूँह मिठा करवाया जा रहा है। जिन्हें भी इत्थे प्रोटेस्टर्स ने इन्हां सब नूं मिठाई खवाई जा रही है और मूँह मिठा जो करवाया जा रहा है और खुशी है। ये एक जश्न की खुशी है इन्हां दे मनां दे अंदर और इत्थों दी इस प्रोटेस्ट नूं हुण चक्कन दी इन्हां दे वल्लों कॉल दे दी गई है। ये विड्रॉ कर रहे ने। ये तमाम वो जेंजीज ने, इन्हां दे स्पोक पर्सन ने कांग्रेस जनता पार्टी दे सौरभ और तमाम लोग जो ने ਤਾਂ ਇਹ तमाम लीडर्स ने इन्हों के ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ और इस प्रोटेस्ट ने एक नवी आवाज़ जी है वो जरूर खड़ी की और ये जेंजीज का प्रोटेस्ट है और प्रोटेस्ट ਨੂੰ विड्रॉ करने की कॉल जो है वो कांग्रेस जनता पार्टी के ਵੱਲੋਂ दे दी गई है। तस्वीरें तुसीं देखोगे ये जश्न मनाए जा रहे हैं पर अजे भी इन्हों के ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ही ये प्रोटेस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ मौजूद ने, कह रहे हैं कि ਅਸੀਂ घर नहीं जाना। भावें बच्चे हों, बुजुर्ग आए हों, हर कोई जो है इत्थे उस जश्न को मनाता हुआ नजर आ रहा है। प्रोटेस्ट विड्रॉ कर दिया है, घर जाना कि नहीं जाना? अभी नहीं जाना है, अभी तो जश्न होगी सर, जाएंगे नहीं। अच्छा, आज खुशी कितनी है? बहुत ज्यादा इतनी खुशी हुई है कि मेरी शादी पे भी इतनी खुशी नहीं हुई थी। झुकाने वाला चाहिए, झुकता तो सबका बाप है, झुकाने वाला चाहिए। लगता है कि इस्तीफा काफी है, इस्तीफे से अरे अभी नहीं काफी है, अभी तो गन्ने वाले का भी लेना है, गन्ने वाले का भी, अभी तो अमित शाह सारे ये शुरुआत हुई है और ये शुरुआत बहुत अच्छी है। ऐसी शुरुआत देश में होनी चाहिए। इससे उनके पास एक संदेश जाएगा कि जनता चूतिया नहीं है, नेता लोग चूतिया। मोदी जी ने मित्रों की जगह फ्रेंड्स कहा है। वो डरता रात को 12 बजे डर गए वो। मेलोनी ने फोन बंद कर दिया, वो डर गए बच्चों से। मोदी भाग जाओ, मोदी छोड़ के। फ्रेंड्स बनोगे कि नहीं बनोगे? हर कोई जानता है बीजेपी सबसे करप्टेड पार्टी और इनके पीछे किसी कोई चाल ही होगी। ये इतने आसानी समझौता नहीं हुआ है कुछ। ठीक है। सो तुसी देखोगे इस वेले प्रोटेस्ट विड्रॉ की कॉल कर देती है और एक घर जान की गल नहीं कर रहे। इन्हें लिखा है हर प्रॉब्लम की जड़ खोद देगा, हर प्रॉब्लम की जड़ खोद देगा। ये जेंजी है मीडिया एंड मोदी
तुम्हें और पूरी कैबिनेट को कर देगा। चलो वो बीप लगा दिया है। अगोदी मीडिया ਦੇ ਉੱਤੇ जो है वो खास तौर ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਜੋ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ तमाम ਬੱਚੇ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲੋਗਨਸ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਂਫਲੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਪੈਂਫਲੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਮੇਨ ਸਟੇਜ इस साइड है, इस साइड के मेन स्टेज का बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे? इस्तीफा हो गया, प्रोटेस्ट विड्रॉ की कॉल कर दी है, बच्चे घर नहीं जा रहे, कह रहे हैं अभी तो पार्टी शुरू हुई है। पार्टी की कोई बात नहीं है, अभी असली मुद्दे सामने आएंगे। क्या क्या मुद्दे आपको लगता है अभी और आने चाहिए? असली मुद्दे जो हैं रोड मिनिस्टर से लेके फाइनेंस मिनिस्टर से लेके पेट्रोलियम मिनिस्टर से लेके सीधा पीएम मोदी से लेके सीधा मेलोडी खिलाने से कोई फायदा नहीं होगा। E20 लगता है अब नया नेक्स्ट जो मुद्दा है वो बनता हुआ वो तो है ही मुद्दा, वो तो एग्जिस्टिंग मुद्दा है, वो नया मुद्दा नहीं है। वो अभी हमारा एग्जिस्टिंग मुद्दा है और ये सारे मुद्दे खुलेंगे, अभी सामने आएंगे, फिर आप क्या कहोगे? फिर एजुकेशन रिफॉर्म्स को लेकर क्या मांगे हैं आपकी और क्या होना चाहिए, किस तरीके से रूल्स आने चाहिए? कह रहे हैं कि कैबिनेट में लेकर आएंगे, स्ट्रिक्ट लॉज की बात कर रहे हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात कर रहे हैं। क्या एक जेंजी होने के नाते क्या रिफॉर्म्स चाहते हैं आप? फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का आज तक फ़ायदा कुछ नहीं हुआ और जहाँ तक बात रही रिफॉर्म्स की, मुझे लगता है कि एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए दुनिया का और एजुकेशन इज़ द वीकेस्ट सेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट, इसलिए इज़ द वीकेस्ट सेक्टर। एक और तस्वीर जड़ी है वो आई है सचिन कुमार। क्या क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली पुलिस आ गई है, जीत गए। क्या क्या कहना चाहेंगे? आप सीधा जेल से आ रहे हो? दिल्ली पुलिस ने बहुत लाठी चलाई। जीत गए नहीं जीत तो गए, दिल्ली पुलिस ने लाठी क्यों चलाई? लाठी चलाई मोदी की सरकार में चली है लाठी। जो ने दिल्ली पुलिस ये तस्वीरां तुसी देखियां ਤਾਂ ਇਹ ਜੈਂਸੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਰ ਹਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਾਈਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ।